vertical, we can go up to a certain limit, because after that, let's say if I want to go for 512 of GB of RAM and 10 terabytes of storage, maybe storage can is not going to create the issue, but definitely it will slow down the system. But because the chipset and the processors, they have got certain set of limit on that, so they are not going to perform after that. Yesterday, as I given you an example of simple, you can have the same thing for your with your mobile also. Like up to a certain limit you can scale up, but after that it won't allow to you to even increase your storage or RAM itself, because if you have to increase everything, so it is better to go with a new phone. That is this. The similar thing comes up here with the servers also. Like if you want, okay, instead of just 256, I want 512 in 1 terabyte of RAM, and I need 100 terabytes of storage. So I can just configure a new get a new configured server for that. But that again, it's going to be come up with lot of cost. But in case of, if we are just talking about scale out mechanism, so in scale out, what we need to do is, let's say I've started with the, let's say 10 systems. I've got 10 machines, okay, and these are basically the cheap machines. 10 machines, and each machine is having, let's say you can say 16 GB of RAM, then around 2 terabytes of storage on each machine, and some cheap processor is going to be there. I have started with 10 machines, so this machine is having RAM, storage, as well as some processor with it. Next time when I'm going to have more machines, so I can have I can just introduce more machines. In my cluster itself. And so here in scale out mechanism, basically what we are trying to do is, like, every time we are not just increasing one thing, we are increasing the whole processing power with RAM, with storage, with processor, and those are all going to run in the parallel itself. So my parallel processing is going to be increased. So there is no limit, as I told you earlier also. When we are having scale out mechanism, so within scale out, Yahoo has tested for 12,000 nodes in just one cluster. So you can nodes in just one cluster, 12,000. So you can imagine, we are just talking about very, let's say 10 node, then 20 node, then again if we are increasing, we can increase 200 nodes to 200 nodes to 500 nodes till 12,000 node cluster. It's all fine, no issues at all. And it's just plug in and play just you need to plug in, and it will start processing from the next time itself. No need to even broke down your system, or you don't need to shut down your system, running machine. Automatically it will scale up. So that's why it is called as scale horizontally. Horizontal means like how you are not only increasing the power in just one direction, it's going in all whole directions. Horizontally it is getting expanded. So if you want, you can expand it like this. So how many number of machines you want to add, just add those many number of machines, and it will work as expected, right? Clear? Yes, sir. Okay. Any more queries before we proceed further?
koi doubt, koi questions on any of the points that we have discussed yesterday? Let me just pull up. Yes. So here we have left. So within these points itself, if you have any questions, because these points talks a lot, and this one. This is one of the important thing that you need to remember. Why Hadoop? Because it's reliable, flexible, economical, and scalable. So we have already discussed all those things. So just to remind, why we are saying it's flexible. Anyone can answer this. Devesh, Arvind, Seth, if you have any idea on this. Sir, Yeah, हेलो why it's flexible? Yes, I be सर just one line. फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि सर डेटाबेस की तरह ना इसमें डेटा को पहले हम लोग टेबल के फॉर्मेट में सेव नहीं करते हैं। ये Mm-hmm. किसी भी फॉर्मेट को डायरेक्ट स्टोर कर लेता, वो चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरह के फाइल को हमारा स्टोर करता है, इसलिए Exactly. फ्लेक्सिबल कहते हैं। It's not only for storage. Mainly, it is for processing, right? So we can Yes, process structured, semi-structured, unstructured, any kind of data. It is able to accommodate. So yes, that's why it's flexible to accommodate the new changes, new data types. It is all able to store and process any kind of data. So that's why it is flexible. Why we are saying yes. it's scalable? Just discuss, right? Scalable. We can scale it to any number of machines whenever required. If we need, where we have started with, let's say, ऐड कर सकते कितना भी yeah, मशीन को हम लोग। yes, we have started with, let's say 10 machines or 100 machines cluster, and then we need the bigger cluster, 200, 300, 500,000 machines cluster. That is fine. Then why we are calling it as economical? क्योंकि सर ये चीप रहता है और ओपन सोर्स रहता है। Yes, चीप because हार्डवेयर this uses commodity hardware, cheap hardware, which is less in cost. But again, if it is economical, definitely it is prone to fail, right? There are more chances that it will fail. So to cater this thing, we have got the reliability. So how it is reliable? Because it is storing 3 copies of the हमारा same डेटा। data. हाँ, इसकी बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशंस होती है वो हमारी 3 होती है, यानी कि जो हमारा डेटा एक मशीन पर है, सेम डेटा इज आल्सो गोइंग टू स्टोर्ड ऑन 2 अदर मशीन्स, और इट इज कॉन्फ़िगरेबल। ये ऐसा नहीं है कि दिस इज डिफॉल्ट। अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सो इट विल स्टे ऑन 2 अदर मशीन्स, लाइक वन मशीन एंड 2 अदर मशीन्स दर एप्लीकेशन, यानी उसकी कॉपी जो होंगी वो 2 अदर मशीन्स पे होंगी। बट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे मेरा डेटा, आई नीड सम मोर सिक्योरिटी, राइट, तो आप उसको 4-5 हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू कीप इट, यू कैन कीप इट, इवन यू कैन रिड्यूस इट। आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरा स्टोरेज को बेसिकली द डेटा इज इट्स फाइन फॉर मी, सो आई कैन पुट जस्ट 1 रेप्लिकेशन, तो आप 3 की जगह पे 2 भी कर सकते हो। So those are all configuration files. So हम configuration file में उसकी वैल्यू को 3 की जगह 2 कर देंगे, या 1 कर देंगे, या 5 कर देंगे. Accordingly, it is going to store the data, right? But yes, it's all based on your requirement, right? क्योंकि जो तीन जो applications हैं अभी हम discuss करेंगे कि they are not going to be there on the same location. वो same पे भी हो सकती हैं, different locations पे भी हो सकती हैं. So it's all again, because this also brings up the cost also, right? How we are going to store them. Clear? So these were the and Hadoop principles that we have already discussed, क्योंकि ये हमारा simple programming model पे based है, structured unstructured data पे काम करता है, facilitate for storage and processing large amount of data, and it processes the data in parallelly, right, in the form of distributed fashion. So it is basically apply scale out rather than scale up mechanism.
and here we are bringing data to the code. No, we are not moving the data to the code, but we are bringing code to the data. So because code is small in size, right? So that will be easier to send it over the network. अब मैं एक फाइल है एक फाइल है 1 GB की फाइल, और एक फाइल है मेरी 1 TB की फाइल. सो विच फाइल इज गोइंग टू टेक लेस टाइम? और एक फाइल है मेरी लेट्स से कुछ MBs की फाइल ही है. So definitely my MB file is going to be much faster. So instead of sending the data to the code or to the processing, हम processing को code के पास लेके आ रहे हैं, data के पास ले आ रहे हैं, and we are not moving any data because yesterday we have discussed there were a lot of issues that we faced, like हमारा raw fidelity data was not able to process. जो data हमने scale किया था raw layer पे, the same data is not reached for the processing at the processing layer. Third was the premature data death. So इन तीन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया that हम डेटा को कहीं मूव ही नहीं कर रहे. जब हम डेटा को मूव ही नहीं कर रहे तो these problems are not going to be faced. So हम कोड को डेटा के पास ला रहे हैं, यानी कि जो प्रोसेसिंग है हम प्रोसेसिंग वहीं कर रहे हैं जहां हमारा डेटा है, हम डेटा को मूव ही नहीं कर रहे. सो देन वी हैव गॉट हाई स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि हमारा जो रेप्लिकेशंस है उसकी वजह से, और जितना हम चाहते हैं इफ वी वांट मोर नंबर ऑफ मशीन्स सो वी कैन स्केल इट, एंड दैट्स व्हाई जितना ज़्यादा स्केलेबिलिटी होगी मशीन्स होंगी देन वी कैन बेसिकली गिव मोर नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, और उससे हमारा डेटा विल बी ऑलवेज अवेलेबल. अगर मेरा एक मशीन डाउन है, दो मशीन डाउन है, सो आई कैन इवन गेट द डेटा फ्रॉम द थर्ड मशीन, राइट. यूज commodity hardware, so इसलिए cheap है और fault tolerant because of the number of applications that we are having, right? Then we discussed this, like what are the differences that we generally have within our traditional databases, which are all being as the RDBMSs and the Hadoop, right? And then from Hadoop to we'll move to the Spark, right? In next few sessions, but just to make you aware about, because my Spark is all based on Hadoop itself. And what is the difference? We'll discuss all those things so that you should be able to have the clear idea from where this data engineering and how the this distributed processing has started, and how it bring from starting to the till date that what we are using right now. Although there are a lot of changes are there, a lot of technologies that has evolved during this last around 2 decades. We have got a lot of new things which are coming up. So now let's discuss. I'm not going to discuss this thing in detail because right now we as yesterday I also told you, in less than 10 to 12% of the companies, mostly they are using Hadoop as of now, but mostly will be moving to Spark side. But yeah, before that at least you should have the understanding of how generally the Hadoop ecosystem works. So basically कोई भी हमारा let me take it this way कि कोई भी अगर हम कोई भी डेटा पाइपलाइन या बनाते हैं तो उसमें हमारा डेटा पाइपलाइन है क्या? बेसिकली डेटा पाइपलाइन क्या है कि हमारा एक सोर्स होता है और एक टारगेट होता है. तो हमें बेसिकली सोर्स से डेटा को रीड करना है एंड वी हैव टू मूव आवर डेटा टू द टारगेट. यही हमारी पूरी एक डेटा पाइपलाइन होती है, ठीक है ना. अब इसमें बहुत सारे बीच में फेजेस हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट इटसेल्फ. तो उसको हमें प्रोसेसिंग करने के लिए पहले तो हमारा चाहिए होगा हाउ वी आर गोइंग टू इंजेस्ट द डेटा, राइट. तो अगर हम Hadoop इकोसिस्टम 1 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा था ये these are the 2 tools has been given. There were many more, but generally we used to use these tools. और apart from this we are also having this some हमारी कमांड्स होती हैं जो कॉपी कमांड्स जिनको हम बोलते हैं to get the data into the system. So basically in Hadoop 1 we have got Flume, जो unstructured और semi structured data को अगर हमें we have to bring the data to the system, तो हम उसके लिए यूज करते थे Flume. और Scoop is that is SQL operations, the full form is, and it is only for the structured data sets. So you see there are 2 arrows that we can move the data to the Hadoop system or we can also bring the data, क्योंकि हमारा structured data है. बट Flume में हमारा सिर्फ 1 एरो है, क्योंकि Flume इज जनरली फॉर अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो हमारा जो डेटा जा रहा है वो जनरली हम वापस सेम फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फाइनल टारगेट हमेशा क्या होता है कि हमारा it is going to put some sort of records, reports. So report is
मोस्टली गोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो हम अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फाइनली द रिपोर्ट इज गोइंग टू बिकम इन द फॉर्म ऑफ structured format only. So उसके लिए फिर हमारे पास scoop है, so we can get the data back. Or another ways, we have got some copy commands are there. So with the help of this we can bring the data. So अब पहला लेयर आता है कि हमें डेटा को स्टोर कहाँ करना है। तो Hadoop के अंदर हमारा एक इसका अपना, जैसे कि हमारा DFS है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सो Hadoop ने अपना एक खुद का फाइल सिस्टम डिजाइन किया, हमने उसको बोला Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ऑल्दो इट इज द सेम, जो अगर आपने इफ यू नो लाइक इट वाज स्टार्टेड बैक इन 2005 जब गूगल ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था विद द नेम गूगल फाइल सिस्टम। सो वही है, द सिस्टम इज द सेम, लाइक हम एक पर्टिकुलर फाइल है, अगर मेरी 1 GB की फाइल है, सो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू मल्टीपल फाइल्स, और जब मल्टीपल फाइल्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके देन आई एम गोइंग टू रन इट इन द पैरेलल इटसेल्फ। तो एक फाइल को मैंने उसे तोड़ दिया और उस टूटी फाइल को मैं उसको पैरेलली रन कर रहा हूँ। So this is how the distribution of the file system works. So अब हमने फाइल को तोड़ तो दिया, अब मेरी 1 GB की फाइल है, तो डिफॉल्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 128 MB में होता है। Hadoop 1 में दिस वाज 64 MB, राइट। सो अगर मेरी 1 GB की फाइल है, सो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 16 पार्ट्स। तो HDFS में वो 16 पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाएगी एक ही फाइल। अब उसको नाम दे दिया जाएगा कि जैसे कि पार्ट 000, पार्ट 001, 002, 003 लाइक वाइज। सो पार्ट 0 मतलब फर्स्ट जो हमारा पार्टीशन था, एक पार्टीशन से लेके 15 पार्टीशन, टोटल 1 GB अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 GB। सो 1 GB इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू लेट्स से, अगर आप 1 GB को 64 MB में करोगे तो कितना आएगा? इट विल बी, ये होता है ना 1024, 1 GB में होता है हमारा 1024 MB एंड डिवाइडेड बाय 64। So it will come out to be 16. Simple mathematics, right? तो यहाँ पे 16 उसमें डिवाइड हो जाएगा। सेम अगर आपकी 1 TB की है, सो अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू बी देयर इन 16,000, राइट। सो अब उसको हमें प्रोसेस करना है, तो Hadoop पे हमारा एक प्रोग्रामिंग मॉडल है दैट इज मैप रिड्यूस, जो कि हमारा मैप और रिड्यूस की फॉर्म में काम करता है। मतलब कि इसको Hadoop जो मैप रिड्यूस को प्रोसेस करने के लिए 2 इनपुट और आउटपुट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इट टेक्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैपर, और इसकी आउटपुट भी इन द फॉर्म ऑफ मैप होगी। और जो फाइनल हम मैप मतलब बेसिकली एक मेथोलॉजी है दैट विल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नॉट इन डिटेल बट इन शॉर्ट आई विल टेल यू, बिकॉज यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। इस मैप रिड्यूस को ही आगे चल के स्पार्क में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बिकॉज मैप रिड्यूस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम। मतलब कि बेसिकली हमारा जो आउटपुट आती है हम उसको स्टोर करते हैं फाइल्स में, फिर उसको रीड करते हैं, फिर उसके आउटपुट को स्टोर कर रहे हैं, फिर रीड राइट। सो Hadoop में यही है कि जो रीड राइट में ही हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज Hadoop वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क, बट हमारा जो स्पार्क है दैट टोटली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ आइदर डिस्क और इन रैम। सो अगर हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मेनली हमारा रैम में रहता है, तो दैट इज हाउ इट इज फास्टर। विल डिस्कस इट लेटर, बट या सो मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि उसको हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है। तो जो भी हमारा डेटा आया उसको हमने प्रोसेस किया मैप रिड्यूस के थ्रू, एंड फाइनली जो भी हमारी आउटपुट आएगी दैट वी कैन टेक इट एज आउटपुट। सो हम उसको अगर मेरा स्ट्रक्चर्ड है, सो आई कैन यूज स्कूप और कॉपी कमांड्स की फॉर्म में हम उसको वापस ले लेंगे। अब हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, सो ठीक है, ये प्रोसेस हमने कर दिया। अब प्रोसेसिंग के अलावा भी ये तो हमारा सिंपल एक बहुत ही बेसिक पाइपलाइन हुआ कि ठीक है, हमारा डेटा है, हमने स्टोर किया उसे, देन वी आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम HDFS और उसको मैप रिड्यूस के थ्रू वी आर प्रोसेसिंग इट, और फिर हमारा वी आर गोइंग टू राइट इन दी सम आउटपुट फोल्डर, हमारे वो फाइल्स आउटपुट फोल्डर में हो जाएंगे। बट दे आर गोइंग टू बी सम यूज केसेस वेयर वी हैव टू यूज प्रोसेस फर्दर मोर विद द हेल्प ऑफ सम अदर डेटाबेस। सो HBase हमारे NoSQL डेटाबेस है। There are multiple NoSQL database. If you have
heard about MongoDB, CouchDB, Neo.js. There are multiple, NoSQL databases are available. These are mainly the column format databases are there, which are much faster as compared to our RDBMS. RDBMS क्या होता है हमारा? RDBMS हमारा रो ओरिएंटेड डेटा स्टोर है, बट जो हमारा कॉलम ओरिएंटेड डेटा स्टोर्स है, दे स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. तो कॉलम्स की फॉर्म में जब होता है कि अगर मुझे लेट्स सपोज मेरे 100 कॉलम्स है, अब मुझे सिर्फ 5 ही कॉलम चाहिए, तो अगर आप RDBMS के थ्रू कोई क्वेरी फायर करोगे तो क्या करेगा, पहले पूरी की पूरी रो को स्कैन करेगा एंड देन इट विल गेट दोज 5 रिकॉर्ड्स, 5 columns from 100 column. बट हमारा रो कॉलम ओरिएंटेड में क्या होता है कि एक तो वो स्टोरेज एफिशिएंट हो जाता है, और दूसरा जब हम रीड कर रहे हैं, बेसिकली जब हम डेटा को रीड कर रहे हैं, सो इट विल ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट दोज 5 columns और इट विल फैच द रिजल्ट. सो उसकी वजह से हमारा जो रीड है वो फास्टर हो जाता है. तो जितना रीड फास्टर होगा मतलब उतनी हमारी एप्लीकेशन बेटर होगी. सो ये हमारा HBase है विच वर्क्स ऑन दिस कॉलम फॉर्मेट. सो sometimes we can store our data in the HBase, read write करते हैं. So this is but this work on top of HDFS only, क्योंकि ये भी हमारा जो डेटा रीड करेगा HDFS में रीड करेगा, फिर वहां से डेटा को HBase में लेके आएगा, एंड देन HBase भी इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू MySQL. थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जो हमारी क्वेरीज हैं वो वैसे ही हम फायर कर सकते हैं. अगर इफ यू हैव गॉट द बैकग्राउंड ऑफ SQL, then it is quite easy for you to work with HBase. Then Hive data warehouse system, again ये भी एक warehouse system है जो कि हमारा काम करता है on top of HDFS. और this was initially made for the people who were from the SQL background itself. क्योंकि जब हमारा ये Hadoop start हुआ था, तो Hadoop can perform it can work on structured, semi-structured, unstructured data set. बट जो लोग क्योंकि जिन लोगों ने Hadoop को अडॉप्ट किया था, वो लोग पहले किस पे काम कर रहे थे? दे वर मेनली वर्किंग ऑन दिस डेटा वेयर हाउसेस और डेटाबेस सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं. सो उनका मेनली काम किस में होता था? सीक्वल्स में होता था. सो अब उनको एकदम से इफ यू हैव कम अप विद सम लैंग्वेजेस, क्योंकि जो हमारा Hadoop है, इफ यू आर गोइंग टू राइट द प्रोसेसिंग, आइदर यू हैव टू यूज Python, you have to use Java और Scala. So initially ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो कि बेसिकली जिसमें हम इसका बेसिकली ये MapReduce का कोड लिखते हैं टू प्रोसेस माय डेटा सेट. तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. तो टू ओवरकम दैट प्रोसेस उन्होंने कहा कि एटलीस्ट अच्छा, अगर हमारा मोस्ट ऑफ दी जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं वो तो सारे दे आर ऑल SQL कंप्लाइंट और वो SQL बैकग्राउंड से ही है, तो उनके लिए उन्होंने ये Hive डेटा वेयरहाउस सिस्टम बना दिया, विच इज same as running this queries with almost same syntax that we used to run in the SQL itself. So उन लोगों के लिए वो बेटर हो गया, राइट? हमें एक सिस्टम मिल गया Hadoop जो कि लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस कर सकता है, बट मुझे जो क्वेरीज लिखनी है और जो रन करानी है तो वो मैं SQL जैसे ही कोड में लिख रहा हूँ. So that's why this Hive data warehouse system was originated. उसके अलावा एक और लैंग्वेज Piglatin, which is mainly used for data analysis part, and this was similar to English like language. हम उसमें इंग्लिश में जैसे हम अपने क्वेरीज को लिखते थे एंड इट कन्वर्ट्स. अब वही है, जो भी हम क्वेरीज लिख रहे हैं Piglatin क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है MapReduce की फॉर्म में. सेम Hive के साथ भी है, हम लिख तो रहे हैं Hive में, बट वो क्योंकि मेरा जो Hadoop है that works on this MapReduce framework, तो MapReduce में वो बैकएंड में काम करेगा. हमने कोई क्वेरी फायर की तो वो MapReduce, क्योंकि हमारे Hadoop को सिर्फ MapReduce से समझ में आता है. So that's why in backend it is doing the similar way. And Mahout was some machine learning language. Again, this was for people that who were working on the machine learning itself. उसके ऊपर हमारा है on top of it is the Apache USE, which is a workflow. Like मेरा सिस्टम कैसे काम डिफाइन करेगा, तो there मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माय सोर्स, दिस इज गोइंग टू बी माय तो वो मैं सारा अपाचे में बता रहा हूँ. अपाचे उस पूरे उसको वर्कफ्लो को रन कराता है. तो अपाचे क्या वर्कफ्लो है, पूरा ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं अपाचे वर्कफ्लो. एज अपाचे नाम इसीलिए है इसका USE, क्योंकि दिस वाज अगेन डेवलप्ड बाय द अपाचे फाउंडेशन इटसेल्फ, एंड दिस इज ऑल ओपन सोर्स, राइट? सो ये डिफरेंस था.
ये है बेसिकली मेरा हडूप 1.0। तो हडूप 1.0 से हडूप 2.0 में कैसे आए, उसके पीछे मेन रीजन था डेटा का साइज। बेसिकली हडूप 1 और हडूप 2, दे इफ यू सी दे आर ऑलमोस्ट वर्किंग द सेम वे एज वी लाइक, हमारा जो सोर्स सेम है, डेटा हमारा जीएफएस की फॉर्म में आ रहा है, देन वी हैव गॉट एच बेस, मैप रिड्यूस है, और हाई पिगलेटिन, माहूत, अपाचे वर्कफ्लो, अदर yarn frame relate and yarn. This is the one of the important thing that was introduced as a part of yarn. So basically यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये मेरा मैप रिड्यूस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये मैप रिड्यूस है, ये देख रहे हो आप कितना बड़ा है ये। सो मोस्ट ऑफ द टास्क दिस इज बीइंग डन बाय दिस मैप रिड्यूस सेल। तो यहाँ पे क्या है कि मैप रिड्यूस जो हमारा काम करता है, वो क्या क्या काम कर रहा था। एक तो जो भी हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द क्लस्टर इटसेल्फ, राइट। क्लस्टर है, सो क्लस्टर क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ मशीन्स। तो क्लस्टर को मैनेज करना, रिसोर्स को मैनेज करना और प्रोसेस करना, ये बेसिकली यहाँ पे 3 काम कर रहा था। सो मैप रिड्यूस का काम क्या था हडूप 1.0 में, क्लस्टर मैनेजमेंट, क्लस्टर को मैनेज करना, ठीक है ना। देन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि किस मशीन को कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो भी काम मेरा मैप रिड्यूस का ही था। और तीसरा काम था प्रोसेसिंग। अब जो डेटा है उसको भी तो प्रोसेस करना है। तो ये तीनों काम बेसिकली ऑल द 3 वर्क्स आर बीइंग डन बाय मैप रिड्यूस 1.0। सो इस केस में क्या हो रहा था कि अप टिल 4000 डेटा नोड्स, जब तक कि हमारा डेटा नोड्स 4000 तक थे, टिल 4000 डेटा नोड्स, यानी कि 4000 मशीन्स तक। I'm writing data node as DN. It was working fine, no issues at all, right? But once we are moving beyond 4000, let's say 5000, 6000, 7000 nodes, so what it was found, there was some issue with the performance. Performance bottleneck issues देखे गए, which was beyond 4K data nodes, right? So beyond 4K data nodes, users start facing some sort of performance bottlenecks. Then basically engineers find it out that my MapReduce was getting overburdened. So they have come up with this new concept in Hadoop 2.0 with yarn. Hadoop 2.0, they have come up with this yarn. Yarn is yet another resource negotiator. You can see them, yet another resource negotiator. So अब इसका काम क्या था कि जो फर्स्ट 2 टास्क थे, cluster management and resource management, these were taken up by the yarn, and this third task, data processing, was just given to MapReduce, right? This is the only difference. तो आप देखो कि जो मेन, इसने कहा कि भाई आपका मेन टास्क ये है कि आप डेटा को प्रोसेस करो, दैट्स इट, प्रोसेसिंग आपका काम है। रेस्ट ऑफ दीज 2 मैनेजमेंट वाले टास्क यार्न ने ले लिए।
So here if you see, यान का जो टास्क है वो बड़ा हो गया और हमारा मैप रिड्यूस का छोटा इसीलिए दिखाया हुआ है, जस्ट टू जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? सो यहाँ इसके अलावा दे हैव जस्ट कम अप विद सम ऑफ द अदर फ्रेमवर्क्स लाइक MPI, दैट इज मैसेज पासिंग इंटरफेस और ग्राफ APIs। तो बेसिकली उन्होंने कुछ और APIs को ऐड कर दिया, जैसे कि अभी अगर मुझे मैसेज किसी को सेंड करना है, रिसीव करना है किसी सोर्स से, तो उसके लिए इन्होंने एक नई API लॉन्च की, दैट इज MPI। तो उसमें फॉर टू रन दैट वी जस्ट नीड टू कॉल दैट API। ग्राफ के लिए जैसे कि नेटवर्क वाले कुछ एप्लीकेशन को हमें डिप्लॉय करना है, सो दोज वर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, सो उसको रिफॉर्म करने के लिए दे हैव कम अप विद सम ग्राफ APIs, राइट? उसके अलावा एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट द सेम, देयर वाज नो डिफरेंस। सो दिस Hadoop 2.0 they have tested it for more than till 12,000 data nodes, and it was all working fine, no issues, not at all. Clear? So अभी यहाँ तक बता मुझे इन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया, वन में और टू में? So the main difference was Yarn, yet another resource negotiator, which was a cluster resource management, right? Yes sir. Yes sir. Question, कोई queries अभी तक? नहीं सर. Okay, thank you. Let's move. So अब अगर हम Hadoop की बात करते हैं तो इसमें हमारे Hadoop 2.0 काम कैसे करता है? तो as I told you, इसके दो पार्ट हैं, एक मेरा स्टोरेज है, एक मेरा प्रोसेसिंग है। सिंपल, इसको देखो समझ ली, अगर आपने इसको समझ लिया देन आपको Hadoop का आर्किटेक्चर समझ में आ गया। एंड दिस इज वेरी इजी, इट्स नॉट टफ टू अंडरस्टैंड दिस। दो पार्ट है इसके, एक स्टोरेज है, एक प्रोसेसिंग है, ठीक है ना? स्टोरेज के लिए मेरा HDFS हो गया, क्योंकि मेरा फाइल्स किस में जा रही है, स्टोर हो रही है, HDFS की फॉर्म में, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब इसको कैसे मैनेज किया जाता है? सेम प्रोसेसिंग के लिए मेरा यार्न आ गया, जो कि रिसोर्स मैनेजर है और नोड मैनेजर, जिसके दो पार्ट होते हैं हमारे, रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर। तो ये जो हमारा पूरा Hadoop आर्किटेक्चर है, ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। एक मास्टर नोड है, एक स्लेव नोड है, दैट इज डेटा नोड। दूसरी तरफ प्रोसेसिंग की बात करें तो रिसोर्स मैनेजर है जो कि मास्टर है, और नोड मैनेजर है जो कि हमारा स्लेव है। अब वो कैसे काम करते हैं, ये हर एक उस पर काम करेगा, बेसिकली हर डेटा नोड पे मेरा ये सिस्टम काम करता है। तो क्या है कि अब जो मास्टर मेरी वो है डेमन्स, इनको बोल सकते हो थ्रेड्स, जैसे हमारे थ्रेड्स होते हैं वैसे काम कर, सर्विसेज है बेसिकली ये, तो हम बोलते हैं इनको डेमन्स और थ्रेड्स और सर्विसेज, वट एवर यू वांट टू कॉल देम। तो स्टोरेज के लिए मेरा नेम नोड है। नेम नोड क्या स्टोर करता है, जो कि मेरा मेटा डेटा होता है, मेन डेटा, मतलब मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द डेटा। तो जैसे कि अब क्लस्टर में मेरे कितने नोड्स हैं, जैसे कि मेरा 100 नोड क्लस्टर है, तो उसमें क्या होगा, एक मशीन होगी मेरी नेम नोड। नेम नोड क्या है, ये मेरी मास्टर मशीन है। और मास्टर मशीन क्या होती है, दिस इज सम काइंड ऑफ एक मशीन होगी जो कि जिसका हार्डवेयर है वो काफी दिस इज हैविंग वेरी गुड हार्डवेयर, वेरी एक्सपेंसिव हार्डवेयर, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी डाउन वेरी इजीली। दूसरा हमारा आता है डेटा नोड, जहाँ पे मेरा एक्चुअल डेटा है। तो जैसे कि नोड होंगे 100, नेम नोड एक होगी, बट डेटा नोड मेरी 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 500, 1000, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इटसेल्फ। सेम जो मेरी रिसोर्स मैनेजर है वो भी मेरा उसी मशीन पे होगा जहाँ पे मेरा नेम नोड है, ठीक है ना? सेम एक ही मशीन पे दोनों ये डेमन्स काम कर रहे होंगे। और जैसे रिसोर्स नेम नोड स्टोर करता है डेटा अबाउट ऑल दी डेटा नोड्स के, इस मेरे क्लस्टर में 100 डेटा नोड्स हैं, तो उस डेटा नोड में हर एक मशीन पे कितने नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल हैं, कितनी डाउन है, कितनी अप है, कितने, और हर एक मशीन पे कितना स्टोरेज अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरी नेम नोड के पास होती है। दैट्स व्हाई इट स्टोर्स द मेटा डेटा। सो जो मेरा नेम नोड है, दिस स्टोर्स माय मेटा डेटा, ये हमारा मेटा डेटा स्टोर करता है। हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है ना? तो स्टोर्स मेटा डेटा विच इज डेटा अबाउट द डेटा, राइट? और ये डेटा नोड पे हमारा एक्चुअल डेटा होगा। सेम जो रिसोर्सेज हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो रिसोर्स मैनेजर क्या करता है कि भाई हर एक मशीन पे नोड मैनेजर पे मेरा कितना डेटा कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब ये नोड मैनेजर है तो कितने नोड मैनेजर अप हैं, कितने डाउन हैं,
किस मशीन पे वो प्रोसेसिंग भेज सकता है। तो ये दोनों एक ही मशीन पे होंगे। तो इनका काम कैसे होता है कि मेरे नेम नोड कैन टॉक टू डेटा रिसोर्स मैनेजर, और नेम नोड डेटा नोड के साथ भी बात कर सकती है, क्योंकि ये तो दे कैन टॉक टू ईच अदर लाइक दिस, राइट। सिमिलर टाइप के मशीन वो है स्टोरेज के लिए हैं, तो ये दे कैन टॉक टू ईच अदर। तो उससे नेम नोड और डेटा नोड एक साथ बात कर सकते हैं। इसी तरह से रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर बात कर सकते हैं। तो रिसोर्स मैनेजर भी के पास भी वही मेटा डेटा होता है, बट प्रोसेसिंग रिलेटेड। तो इसको ये पता है कि नेम नोड कौन सी नेम नोड फ्री है, कि उसके उसके पास वो किस नेम नोड के पास प्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। इन द सेम वे माय नेम नोड कैन टॉक टू रिसोर्स मैनेजर। सो ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और डेटा नोड कैन टॉक टू नोड मैनेजर, बट इनका क्रॉस कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। मतलब कि हमारा नेम नोड नोड मैनेजर से बात नहीं कर सकता, और रिसोर्स मैनेजर मेरा डेटा नोड से बात नहीं कर सकता, राइट। अब इसमें हमारा ये एक और कंसेप्ट है सेकेंडरी नेम नोड का, ठीक है ना। तो सेकेंडरी नेम नोड क्या होती है कि अब नेम नोड के पास सारा डेटा है, मेटा डेटा है कि भाई मेरी पूरे क्लस्टर में कितने मशीन्स अप हैं, कितने डाउन है, किस मशीन्स पे कितना स्पेस अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, ऑल दैट थिंग, राइट। बट इन एनी केस इफ दिस नेम नोड है तो मशीन ही ना, ठीक है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव हाई एंड मशीन, इट्स नॉट गोइंग टू डाउन वेरी इजीली, बट नेम नोड आर आल्सो प्रोन टू डाउन, राइट। सो वो भी डाउन होती हैं। तो अगर वो डाउन होगी तो उस केस में मेरा जो सेकेंडरी नेम नोड है, दिस विल कम एंड टेक ओवर इट एज एक्टिव नेम नोड। तो ये क्या होती है, पैसिव उसमें पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये एक्टिवली जाके हो जाएगी, अलाउ करेगी, और मेरे प्रोसेसिंग को रुकने नहीं देगी, राइट। सो दिस इज द नेम पार्ट ऑफ माय सेकेंडरी नेम नोड। इसमें एक और कंसेप्ट होता है स्टैंड बाय नेम नोड, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बट अभी यहाँ पे सेकेंडरी नेम नोड होती है, और ये बेसिकली क्या है, दिस इज द कोल्ड बैकअप, ये हॉट बैकअप नहीं होता। तो ये क्या करती है सेकेंडरी नेम नोड, एवरी 1 आवर इट यूज टू टेक द बैकअप। तो जैसे कि हमने 10 बजे लिया बैकअप, तो नेक्स्ट फिर 11 बजे लेगी, कि 11 बजे तक इसके इसमें जो भी अपडेट्स हुए हैं, फिर 12 बजे। सो एवरी 1 आवर इट टेक यूज टू टेक द बैकअप ऑफ वट एवर इज द सिचुएशन विद माई नेम नोड, वो सारा सेकेंडरी नेम नोड के पास होता है, राइट। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, लेट सपोज मैंने 10 बजे स्टार्ट किया एंड 10:50 को या 10:55 को, लेट से 10:50 को मेरी नेम नोड डाउन हो गई, माय नेम नोड गॉट डाउन एट 10:50। तो क्या होगा इस केस में, एनी आइडिया? टेन 50 को मेरी ये नेम नोड डाउन हो गई, तो उस केस में क्या होगा? सर डेटा नोड, नहीं, सेकेंडरी नेम नोड विल कम एक्ट एज नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड मेरी नेम नोड बन जाएगी, राइट। यस सर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आती है कि इसके पास जो डेटा था ये तो 10 बजे का था ना, क्योंकि 11 बजे वाला तो भी आया ही नहीं। तो लास्ट 50 मिनट्स में जो भी अपडेशंस हुए हैं, फाइल नई फाइल आई, राइट हुई, अपडेट हुई, डिलीट हुई, वो सारा डेटा तो है नहीं उसके पास तो वही डेटा है जो लास्ट 10 बजे का था, क्योंकि स्नैपशॉट लेता है। तो 10 बजे का स्नैपशॉट था ना बस, तो वही उसके पास होगा, तो वो वहीं से स्टार्ट करेगा फिर। तो ये क्या है, पिछले 50 मिनट में या जब भी वो फेल हुई, अभी हमारे केस में 50 मिनट लेके चलो, तो 50 मिनट्स में जो भी अपडेशंस हुई, जो भी प्रोसेसिंग हुई, वो सब जीरो हो जाएगी। सो दिस इज नॉट गुड, राइट। हो सकता है हमने कुछ फाइल्स नहीं ऐड करी हो, डिलीट करी हो, अपडेट करी हो, वो सारा का सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, राइट। एंड 50 मिनट्स इज अ बिग टाइम। सो ये हमारा क्या था, ये Hadoop 1.0 में था इशू। Hadoop 2.0 में इस सेकेंडरी नेम नोड क्या हो गई, ये ऑप्शनल हो गई कि आपको रखनी है तो रखो, बट नहीं रखनी है तो मत रखो। इसकी जगह पे हमारा सेकेंडरी नेम नोड की जगह पे आ गया हमारा स्टैंड बाय नेम नोड कॉन्सेप्ट, जो कि स्टैंड बाय नेम नोड, ठीक है। तो स्टैंड बाय नेम नोड क्या करता है कि जो भी मेरा नेम नोड होता है, यहाँ पर एक और नेम नोड होती है स्टैंड बाय नेम नोड, मैं उसको SN कर देता हूँ, ठीक है, SN सेकेंडरी नेम नोड। तो यहाँ पे हमारा एक होता है
एडिट लॉग्स। एडिट लॉग क्या होता है कि जो भी हमारा इसमें नेम नोड में अपडेट हो रहा है, ठीक है ना, वो सेम अपडेशन हमारी इसमें भी स्टैंड बाई नेम नोड में भी जाती रहती है, बट ये क्या होती है, सिर्फ एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। अभी ये पैसिव उसमें है, बट जैसे ही मेरा नेम नोड डाउन होता है, इमीडिएटली विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिस स्टैंड बाई नेम नोड टेक ओवर इट एज एक्टिव नेम नोड, राइट। सो देर इज नो चांस, तो जो भी हमारा नेम नोड की करंट सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन और द सेम condition is with my standby name node, so there is no data loss, nothing। जो भी हमारा एडिट लॉग्स में है वो उसको रन टाइम पे इसको मिल ही रहा है, इसमें अपडेट होता जा रहा है। सो दैट्स व्हाई ये जो सेकेंडरी नेम नोड है ये ऑप्शनल होती है हमारी Hadoop 2.0 में, राइट। क्लियर? यस सर। यस सर। अब वैसे ही है, अब मैंने बताया कि जैसे कोई HDFS है तो नेम नोड है, स्टोरेज के लिए हो गया, और डेटा नोड सारे इनसे कनेक्टेड रहते हैं, राइट। सो नेम नोड कैन टॉक टू each of the data node, same way resource manager is going to talk to all the node managers, so in this way it works। तो HDFS cluster के लिए हमारा नेम नोड है और प्रोसेसिंग के लिए यहाँ है, राइट। सिमिलर वे जो मैंने अभी बताया, in this way this is how the communication is going to happen। अब एग्जाम्पल तुम इस तरह से ले सकते हो जस्ट टू मेमोराइज कि जो हमारा नेम नोड है वो मास्टर नोड होता है, मास्टर ऑफ द सिस्टम, सो इट मैनेजेस ऑल दी कितने हमारे हर डेटा नोड पे कितने ब्लॉक प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट है, कितने नंबर ऑफ डेटा नोड्स लाइव हैं, कितने डाउन है, वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। सो इट्स समथिंग लाइक यू नो लाइक Lamborghini car, very expensive, right? It's very rare that it will broke down, but हो तो सकती है ना, तो ब्रोक डाउन हो जाएगी, तो इन दैट केस वी आर हैविंग अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंड बाय नेम नोड्स। डेटा नोड दूसरी तरफ क्या है कि दोज आर समथिंग लाइक योर टैक्सीज, जो कि मैक्सिमम जो हमारा पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन के लिए। तो वो सिमिलर वे हमारे जो डेटा नोड्स हैं, हमारा जो एक्चुअल डेटा डिप्लॉय हो रहा है वो कहाँ पर है, वो स्लेव्स नोड पर ही है। सो हर एक मशीन पे एक्चुअल स्टोरेज तो मेरी डेटा नोड्स पे ही है ना, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रीड एंड राइट रिक्वेस्ट विच आर कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट इटसेल्फ, राइट। सो डेटा नोड्स आर लार्ज इन नंबर बट दे आर चीप, बट चीप हैं, सो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि चीप है, बट इफ दे आर वेरी प्रोन टू ब्रोक डाउन, अगर वो ब्रोक डाउन होंगे, सो another we are having deployed data to another nodes also, so there we can get it, right। अब मेटा डेटा है, क्योंकि जो हमारा नेम नोड है उसको मेटा डेटा को मेमोरी में रखना है, राइट। क्योंकि अगर मेमोरी में नहीं होगा और वो हार्ड डिस्क से रीड करेगा, सो दे आर गोइंग टू बी demand paging। you remember, I hope you must have an idea about what is demand paging and all, right? Or do I need to tell you what is demand paging? पढ़ा होगा ये तो तुमने? नो सर, नहीं पढ़ा सर। नहीं है याद? नहीं सर। कोई बात नहीं। देखो डिमांड पेजिंग क्या होता है बेसिकली, लेट्स सपोज जब भी आप किसी भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते हो, सो फर्स्ट वेयर इट इज गोइंग टू सर्च इट विल ऑलवेज सर्च इन माय मेन मेमोरी, यानी कि रैम के अंदर, राइट। अगर वो इन्फॉर्मेशन रैम के अंदर, तो इमीडिएटली इट विल बी fetch that information from RAM itself, और वो आपको immediately result pass on कर देगा। अगर उसे वो RAM में नहीं मिलता, then it demands a page, यानी कि डिमांड इसी को बोलते हैं डिमांड पेजिंग। then it demands that page from the disk itself, तो वो जाएगा डिस्क में जाके सर्च करेगा, वहां से उस इंफॉर्मेशन को फैच करके लेगा। तो हमारा जो रैम होता है उसमें जो हमारा लास्ट एक्सेस्ड पेजेस होते हैं वो होते हैं ना, क्योंकि हमारा जो रैम है वो पेजेस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डेटा को फैच करता है, राइट। तो अगर मेरा डेटा ऑलरेडी मेटा डेटा मेन मेमोरी में है, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिमांड पेजिंग। सो डिमांड वो कभी करेगा जब उसको दैट इज नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन माय रैम इटसेल्फ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो नेम नोड है, हम चाहते हैं कि उसका मैक्सिमम, क्योंकि ये स्टोर क्या कर रहा है, सिर्फ मेटा डेटा तो स्टोर कर रहा है। अब एक फाइल मेरी 1 GB की फाइल है, ठीक है। अब 1 GB की फाइल है, तो डिफॉल्ट जो मेरा Hadoop 2 में जो डिफॉल्ट ब्लॉक साइज है 128 MB का है। तो एक फाइल 8 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड हुई है,
और वो फाइल कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि ये यूजर एच इन्फो फाइल मेरी 3 मशीन्स पे है, 1, 3 एंड 5, और पी डिटेल्स मेरी इन 2 मशीन्स पे है, लाइकवाइज, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सिर्फ उसने ये इन्फॉर्मेशन ही तो स्टोर करी ना, इस तरह से वो जितने भी फाइल्स होंगे सबकी सिर्फ मेटा डेटा स्टोर कर रहा है। बट मेरा एक्चुअल डेटा तो डेटा नोड्स में है ना, तो जैसे कि अगर 1 टेराबाइट डेटा है तो 1 टेराबाइट का मतलब हो गया हमारा 8000 फाइल्स, 8000 ब्लॉक्स। तो 8000 ब्लॉक्स तो मेरे पूरे कहाँ पर है, वो जो एक्चुअल 1 टेराबाइट डेटा है वो तो मेरा डेटा नोड्स पे है ना। बट उन वो 8000 डेटा नोड्स जो ब्लॉक्स है वो कहाँ पर है, वो किस मशीन पर है, कौन सा ब्लॉक किस मशीन पर है, ये इंफॉर्मेशन हमारे स्टोर करता है मेरा नेम नोड, राइट। सो वो तो हमारे कुछ केबीज या एमबीज में ही होगा, बट स्टिल टू हैव ऑल दैट इन मेमोरी, हमारा जो नेम नोड है हम उसका रैम हमेशा हायर एंड पे रखते हैं, उसमें स्टोरेज का उतना ज्यादा जरूरत नहीं, बट रैम अगर हाई होगी तो हमारा मोस्ट ऑफ दी मेटाडेटा विल रिमेन इन रैम इटसेल्फ एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिमांड पेजिंग। और मेटाडेटा क्या हो सकता है कि भाई मेरे लिस्ट ऑफ फाइल्स कितनी है, लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं हर एक फाइल में, हर डेटा नोड पे कितने ब्लॉक हैं, और फाइल एट्रीब्यूट्स लाइक एक्सेस टाइम, रेप्लिकेशन टाइम, डिलीशन टाइम, सो ऑल दीज थिंग्स। और इसके अलावा वो ट्रांजेक्शन लॉग्स को भी कैप्चर करता है कि भाई मेरा फाइल क्रिएशन टाइम, डिलीशन टाइम, ये सारी चीजें क्या है, वो दैट इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज स्टे विद द नेम नोड्स। क्योंकि अगर इसके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी देन इट विल बी एबल टू ऐड और डिलीट द डेटा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अच्छा ये जो मेरी मशीन 1 है इस पे मेरे 10 ब्लॉक खाली हैं, तो आई कैन सेंड सम डेटा टू दिस मशीन। अगर मुझे वो पता ही नहीं है कि इस पे खाली है नहीं खाली है, देन इट विल टेक मोर टाइम। तो उसको डिमांड करेगा कि ओके मेरे को पूरा सिनेरियो चाहिए कि किस पर्टिकुलर मशीन पे कितना खाली है, कितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल है, कितने डिलीटेड है, कौन सी मशीन काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। दैट इन्फॉर्मेशन रिमेन्स विद द नेम नोड इटसेल्फ, तभी तो वो काम करेगा ना, ठीक है ना। लाइक थिंक इट लाइक नेम नोड लाइक अगर हम बात करते हैं लेट्स से एक टीचर, एक क्लास टीचर है, तो क्लास टीचर को हर एक स्टूडेंट का पता होता है ना, ठीक है, कि ये इसकी इतनी अटेंडेंस है, इतने दिन स्कूल नहीं आया है, इतने दिन ये इसका इन सब्जेक्ट्स में काम पूरा नहीं है, इसके इतने मार्क्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब उसके पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स क्या हो गए, क्लाइंट हो गए ना। तो पेरेंट आंसर इसका वो बताओ क्या क्या स्टेटस क्या है। सो टीचर क्या करता है, इट विल फैच दी रिपोर्ट कार्ड, और उस रिपोर्ट कार्ड में सब इंफॉर्मेशन होती है, उसका रजिस्टर निकालता है, उस रजिस्टर में उसकी एक एक डिटेल्स उसने फिल करी होती है। सेम हर एक डेटा नोड का इसके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में उसकी पूरी फुल एंट्रीज है, ठीक है। सो दैट सिनेरियो बेसिकली परफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ द माय नेम नोड। क्लियर हुआ, कोई डाउट? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। नहीं सर, नहीं हुआ क्लियर? क्लियर हो गया सर हो गया, क्लियर हो गया सर। हाँ तो ये बताओ ना क्लियर है, नहीं बोल रहे हो मुझे लगता है अच्छा क्लियर नहीं हुआ है, डाउट नहीं है ऐसा। हाँ डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर हम 5 ब्लॉक की बात करते हैं तो हडूप 2.0 में ये बेसिकली 128 MB का हो गया, हडूप 1 में 1.64 MB का था। तो इसके भी रीजन, इसका पीछे भी रीजन है कि हमने इसको 64 से 128 MB का क्यों किया। उसके पीछे 2 बड़े रीजंस थे। एक, लेट सपोज कि भाई मेरा 200 MB का फाइल है, हडूप 1 में उसके 4 ब्लॉक बन रहे थे, हडूप 2 में उसके 2 ही ब्लॉक बनेंगे, राइट। तो एक पहला रीजन तो ये है कि भाई अगर हमारा HDFS ब्लॉक का साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम हो जाएंगे तो सीक टाइम कम हो जाएगा। सीक टाइम यू अंडरस्टैंड, उसको ढूंढने का, किसी भी ब्लॉक को फाइंड आउट करने का जो टाइम लगता है, दैट इज माई सीक टाइम, राइट। तो अगर 10 लोग हैं और एक 20 लोग हैं, आपको 10 लोगों में किसी को ढूंढना है और 20 लोगों में किसी को ढूंढना है, तो किसको जल्दी ढूंढ पाओगे? 10 लोगों में, राइट। सेम, तो एक तो रीजन ये हो गया कि अगर मेरे ब्लॉक का साइज कम होगा, आधा होगा, तो उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज्यादा बनेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट just GBs, here TBs, terabytes, petabytes of data that we are going to work. एक petabyte में हमारे कितने number of blocks हो जाएंगे? It is going to be there in lakhs of blocks. तो उसमें अगर उसको सर्च करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, so it is going to take longer time. So उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब हमारी बात आती है प्रोसेसिंग की बात, तो प्रोसेसिंग में हमारा
जितना ब्लॉक कम होगा उतना टाइम कम लगेगा, राइट। दूसरा था साइज, क्योंकि जो हमारी जो स्टोरेज है वो भी तो कम है ना, ठीक है ना। तो अगर मैं ब्लॉक साइज कम रखूंगा तो उसका जो मेटा डेटा है वो डबल जनरेट होगा, तो उसके लिए मैं स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए, राइट। सो हमारा जो स्टोरेज लिमिट है वो भी हमारा कंस्ट्रेंट है। हम ज़्यादा स्टोरेज नहीं क्योंकि हमें मैक्सिमम डेटा को रैम में रखना है, तो स्टोरेज की वहाँ पे हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट वी कैन हैव इट, इट्स नॉट नाइस, बट फाइनली हमको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से दीज टू वर द मेन रीजंस व्हाई वी हैव इंक्रीज। अगेन ये जरूरी नहीं कि आप इसको 128 का रखो, बट ये डिफॉल्ट है। यू कैन इंक्रीज इट अप टू 256, इवन 512, 1 GB तक भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप 1 GB का कर रहे हो तो आपके पास रैम भी होना चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, राइट, दिस वे। सो बट डिफॉल्ट में 128 ही, अगर आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, और आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, दिस इज ऑल कॉन्फ़िगरेबल, बट डिफॉल्ट मेरा 128 है, राइट। अब ये जो रेप्लिकेशन है, अभी हम बात कर रहे हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होती है। तो रेप्लिकेशन अगर आपने कभी ध्यान दिया तो रैक्स की फॉर्म में होता है। हमारा जो डेटा, जो जितने भी हमारी मशीन्स होती हैं, मशीन्स वहाँ पे ये नहीं होता कि जैसे दीज आर ओनली द सीपीयूज, राइट। जो हमारे डेटा सेंटर में, अगर आपने कभी डेटा सेंटर को देखा है तो वहाँ पे क्या है, मशीन्स लगी हुई होती हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू डिफरेंट स्विचेस, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। एक रैक में नंबर ऑफ मशीन्स होते हैं। हियर वी आर जस्ट टेकिंग लेट्स से 3 रैक है, रैक 1, रैक 2, रैक 3, हर एक रैक में 4-4 मशीन है, और मेरे पास 3 ब्लॉक है, लेट्स सपोज ए, बी एंड सी। तो ये 3 ब्लॉक्स को जो रेप्लिकेशन है वो किस तरह से स्टोर करता है, ठीक है ना, जस्ट टू मेंटेन दी यू नो फॉल्ट टॉलरेंस, वो कैसे होगा, ठीक है ना। अब ये रैक 1, रैक 2, रैक 3 ये एक लोकेशन पे भी हो सकते हैं, 2 लोकेशन पे भी हो सकते हैं, और 3 लोकेशन पे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट इटसेल्फ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने देखा होगा कि एक डेटा सेंटर मेरा मुंबई में है, एक डेटा सेंटर मेरा हिमाचल में है कहीं पे, तो मैंने डेटा हिमाचल में भी रखा हुआ है और यहाँ भी रखा हुआ, या फिर ये हो सकता है मेरा मेरा डेटा सेंटर एक यहाँ पर मुंबई में है, एक मेरा सिंगापुर में है, और तीसरा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इटसेल्फ। सो उसी वजह से अगर मेरा एक ही जगह है, लेट्स से मुंबई में है, बट 3 डिफरेंट रैक्स में है, एक ही जगह पे, तो हो सकता है कि मेरा ये एक रैक डाउन हो जाए, तो आई कैन रीड इट फ्रॉम सेकेंड वन। ये भी रैक डाउन हो जाए तो तीसरे से भी कर सकते हैं। हाँ, तीनों रैक एक साथ डाउन हो जाए तो ऑब्वियसली अब आपने एक ही लोकेशन पे रखा हुआ है, और वहाँ पे कुछ लेट्स से कुछ ब्रोक डाउन हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा मेरा डेटा सेंटर ही शट डाउन हो गया। सो डेफिनेटली फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस और एक्सेस योर डेटा। सो उसी कंडीशन को रखने के लिए जनरली हमारे बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द डेटा, जनरली कंपनीज क्या करती हैं, दे यूज टू हैव देयर एप्लीकेशंस इन डिफरेंट जोन्स। वहाँ पे डिफरेंट जोन आ जाते हैं कि आप ईस्ट जोन में रखोगे, एक वेस्ट जोन में रखोगे, या फिर अक्रॉस द कंट्रीज भी हो सकते हैं कि एक मेरा यूएस में है, एक मेरा ऑस्ट्रेलिया में, एक मेरा इंडिया में रखा हुआ। तो जनरली ये आता है क्रिटिकलिटी ऑफ द डेटा के बेसिस पे कि मेरा डेटा कितना ज़्यादा क्रिटिकल है। मुझे तो चाहिए कि 24/7 मेरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। आई डोंट वांट टू तो आप वहाँ पे अगर मेरा एक जगह पे डेटा नहीं आ रहा है तो आई कैन स्विच दी जोन, और मेरा जो भी उसको मैं दूसरे डेटा सेंटर से भी डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, दिस वे। सो ये क्या है कि हमने लेट सपोज एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है कि ब्लॉक ए को हमने राइट किया रैक 1 की मशीन पे, तो इसकी जो दूसरी जो रैक होगी मैं यहाँ पे भी रख सकता था, बट होता क्या है कि मैं एक रैक से जब दूसरे रैक में जा रहा हूँ तो मुझे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक रैक से दूसरे रैक में। तो दिस आल्सो गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क, राइट, उसको नेटवर्क बैंडविड्थ भी चाहिए, तो इनिशियल राइट में तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं तीसरी बार फिर जा रहा हूँ तो फिर वही प्रोसेस मुझे करना पड़ रहा है, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ राइट करूंगा तो to take a lot of time. So generally हम ये one of the you can say the best policy हम अप्लाई करते हैं कि एक रैक को एक ब्लॉक को हमने एक रैक में रखा और दूसरे रैक में हम जहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन रख रहे हैं वो रेप्लिकेशंस वी शुड हैव इन द सेम रैक इटसेल्फ।
बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ, बट हम वही ये थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका, राइट? सिमिलर वे like this way we are going to have this, right? तो हमने वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई है, बट मैंने एज आई टोल्ड यू इट कैन बी डिफरेंट. सो ये बहुत रेयर होगा कि भाई अगर मेरा ये डाउन है तो ये भी डाउन हो जाएगा, ये डाउन है तो ये भी डाउन हो जाएगा. ये एक ही केस में हो सकता है कि अगर तीनों के तीनों मेरा एक ही डेटा सेंटर पे है, तीनों रैक, और वो डेटा सेंटर डाउन है किसी वजह से, फुल डेटा सेंटर ही डाउन है, देन दिस कैन बी द केस कि भाई, तो जनरली हम एक अगर विद इन वन कंट्री इटसेल्फ we used to have the data in different zones. East में है, एक west में रखेंगे, north में, south में, likewise, right? So if I talk about my current project, so we are having the data in west zone as well as in east zone. तो depending on, और generally ये इससे भी फायदा होता है कि आप किस जोन से मतलब जोन के कितने डिस्टेंस पर, मतलब आप जितना ज़्यादा उसके पास क्लोजर हो गए, यू विल बी एबल टू एक्सेस द डेटा फास्टर. सो जनरली हम डेटा भी वहीं से एक्सेस करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी क्लोजर टू अस, राइट? दैट वे इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, बिकॉज अब हमें डेटा को रीड करना है, सो वी आर रीडिंग इट ओवर द नेटवर्क, राइट? कोई ऐसा तो है नहीं, नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क के बेसिस पे हमारे डेटा को हम रीड करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन, सो दे आर multiple things that needs to be take care of this. Yeah, but बहुत सारी organizations होती हैं. सेशन एंड हो गया, बोले जा रहा हूँ नहीं सर, स्क्रीन ऑफ हुई है, बाकी ऑडिबल है. स्विच डिवाइसेस क्या कह रहा है? Hello, are you there? Yes sir, there. Hello. Arvind is there, right? अच्छा, दिवेश is also. ठीक है. I thought के कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, तो क्लियर है ना यहाँ तक? Yes sir. हाँ, तो basically now we come to the end of this one. Just one thing I need to, that how the reading and writing is going to take place. So read कैसे करते हैं कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर. Oh, wait a minute. Visible, right? Yes sir. हाँ, तो अब मुझे कुछ कोई रीड करना है, ठीक है ना? पहले राइट पे चलते हैं, रीड से, ठीक है? अब मुझे कुछ फाइल्स को राइट करना है, ठीक है? तो राइट के लिए पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? एक क्लाइंट है, लेट्स से यू आर द क्लाइंट, राइट? अब उस क्लाइंट के पास कोई फाइल है, ठीक है? लेट्स से 1 GB की फाइल है. अब ये कहता है, क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ये 1 GB की फाइल को इस क्लस्टर पे राइट करना है, तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? नेम नोड के पास जाएगा ना. जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा नेम नोड को कि भाई मेरे पास 1 GB की एक फाइल है, लेट्स से a.csv या कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकती है, CSV. तो मेरे पास ये a.csv फाइल है, मुझे इस फाइल को क्लस्टर पे राइट करना है पहले. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेम नोड को. तो नेम नोड क्या करेगा? नेम नोड विल गो एंड चेक, जैसे कि HDFS क्लाइंट है, ये क्या कह रहा है कि भाई अब ये चेक करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स के पास, चेक करेगा, कहेगा कि ओके, तो ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट देगा नेम नोड को, क्योंकि इसको नहीं पता ना. ये चेक करेगा कि नेम नोड के पास मेटा डेटा, नेम नोड अपने मेटा डेटा में चेक करेगा कि इस फाइल को मैं कहाँ राइट कर सकता हूँ. अब 1 GB की फाइल है तो 1 GB डिवाइडेड बाय 128, 8 ब्लॉक्स उसको राइट करने होंगे. और अगर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन पे आते हैं तो 8 × 3 24, तो उसको 24 जगह पे उसको राइट करना है. 8 जगह राइट करेगा तो उसकी डबल कॉपीज होंगी. सो इट विल गेट ऑल दोज डिटेल्स कि भाई ये मेरी डेटा नोड है जहाँ पे हम डेटा को राइट कर सकते हैं. जैसे ये डेटा के पास जाएगा, ये वापस इसको ये मेटा डेटा भेज देगा कि भाई ये फाइल है, जैसे कि
ये मेरे मशीन्स हैं, मशीन नंबर 4 5 लाइकवाइज, ठीक है। उसके पास जाएगा कि भाई ये मशीन्स हैं, इन मशीन्स पे आप जाओगे और राइट करोगे। तो ये हमारा इंटरनल इनपुट डेटा फाइल सिस्टम के थ्रू जो भी पैकेट है उनको राइट करेगा। पहला राइट होगा, फिर उसकी रेप्लिकेशन राइट होगी, और फिर ये इसकी रेप्लिकेशन राइट होगी। फिर क्या करेगा, जैसे ही तीसरी रेप्लिकेशन राइट हो जाएगी, तीसरी कॉपी, ये इसको बाकी एक्नॉलेजमेंट देता है, ये इसको एक्नॉलेजमेंट देगा। ये कहेगा कि ओके लेट्स से मशीन 1 2 3 है, ये मशीन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो थर्ड मशीन पे जैसे ही राइट करता है, ये जाएगा मशीन 2 के पास, बोलेगा कि हे डेटा नोड 2, व्हाटएवर द द block that you have given me, I have just written it on my machine. So ये कहेगा ओके इस पे हो गया, इस पे हो गया, then it will send back acknowledgement to this machine and say I have written it on my machine as well as on machine number 3, क्योंकि इसको इसका पता है तो इसने इसको भेज दिया। अब इसके पास आया तो इसने कहा अच्छा ठीक है 1 2 3 पे लिख गया, तो ये इसके पास वापस भेजेगा और ये यहाँ से क्लाइंट के पास वापस आ जाएगा और इसको भी अपडेट कर देगा कि जो मेरा ये 8 GB फाइल है, 1 GB की जो फाइल थी, वो ये a.csv यहाँ पे इस मशीन पे इसके हमने डेटा को राइट कर दिया है, और ये जो डिटेल है क्लाइंट के पास भी वापस चली जाएगी, राइट। दिस इज हाउ द राइट प्रोसेस हैपेंस। क्लियर है? तो पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, वो नेम नोड के पास जाता है, नेम नोड चेक करता है कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे वो उन सारी डेटा नोड्स को सिग्नल दे देता है कि ये फाइल को तुम्हें राइट करना है। तो वो इनिशियली राइट करेंगे वो सारे, और उनके जो भी नेबरिंग डेटा नोड्स होंगे उन पे उनकी रेप्लिकेशंस को राइट करके, और जैसे ही रेप्लिकेशन राइट होती हैं दे सेंड बैक एक्नॉलेजमेंट टू द मेन नोड, जहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन फर्स्ट ब्लॉक राइट हुआ था, और वो सारे इंफॉर्मेशन विल सेंड बैक टू द नेम नोड एज वेल एज टू द क्लाइंट इटसेल्फ, राइट। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब राइट हो गया, तो अब हमने राइट क्यों किया है डेटा सिस्टम, इसको प्रोसेस करना होगा, यानी कि रीड करूंगा। प्रोसेसिंग मींस रीडिंग, सो प्रोसेसिंग का भी सेम फंक्शन होता है। क्लाइंट ने अब रिक्वेस्ट किया कि भाई मैंने जो वो a.csv फाइल थी, मुझे उस पर सम प्रोसेसिंग भेजनी है। अब प्रोसेसिंग मैंने लिखी हुई है कुछ, मतलब मैंने उसके लिए लेट्स से मैंने कोई SQL कमांड लिखा है, ठीक है, मुझे उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी थी, या फिर मैंने कोई पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी है, या पाइस्पार्क का मेरा कोई डेटा पाइपलाइन है जिसमें मैं इसको डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। फाइनली आई जस्ट वांटेड टू डू सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा भाई मेरे को उस पर्टिकुलर a.csv फाइल को यूज़ करना है और उस पर ये प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये पहले जाएगी किसके पास जाएगी, रीड की रिक्वेस्ट किसके पास जाती है पहले, रिसोर्स मैनेजर के पास, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए हमारा किसके पास रिक्वेस्ट जाएगी पहले, रिसोर्स मैनेजर के पास जाएगी ना, RM। यस सर। हाँ, तो जैसे ही रिसोर्स मैनेजर के पास जाएगी, रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, अब रिसोर्स मैनेजर को तो पता नहीं रहा कि ये जो a.csv फाइल है वो कहाँ कहाँ स्टोर्ड है, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है, नेम नोड के पास। तो रिसोर्स मैनेजर नेम नोड से कांटेक्ट कर सकता है ना, बिकॉज बोथ आर मास्टर डेमन्स, तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो नेम नोड इसको उन ब्लॉक की लोकेशन भेज देगा, कहेगा कि अच्छा ये जो a.csv फाइल थी जो हमने अभी यहाँ पे लिखी थी, ये वाली फाइल, ये जो मेटा डेटा है ये इसके पास साथ शेयर कर देगा रिसोर्स मैनेजर के साथ। और जैसे इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, इसको पता है कि ये मशीन इसके पास है कुछ डेटा, कुछ इसके पास है डेटा, कुछ इसके पास है डेटा, तो उन सब डेटा नोड के साथ हमारा एक नोड मैनेजर भी तो है ना, हर एक डेटा नोड पे नोड मैनेजर इज अवेलेबल, क्योंकि जो नोड मैनेजर है दिस इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग। तो ये क्या करेगा कि रिसोर्स मैनेजर इन नोड मैनेजर्स के साथ, सारे जितने भी नोड मैनेजर्स हैं इन सब के साथ इंटरेक्ट करेगा, कहेगा कि तुम्हारे पास ये फाइल है इसको प्रोसेस करो। तो वहां पे क्या होगी, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी इनकी, राइट। सो जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने के बाद ये रिजल्ट अगेन शेयर टू रिसोर्स मैनेजर, और रिसोर्स मैनेजर उस फाइल को शेयर कर देगा वापस क्लाइंट को, राइट, आफ्टर प्रोसेसिंग इट। प्रोसेसिंग जो भी इस क्लाइंट ने जो भी प्रोसेसिंग लिखी होगी,
ठीक है ना। क्रॉसिंग का मतलब तो वो हो गया ना जो हमने काम किया है, ठीक है ना। सो इन दिस वे माय रीड एंड राइट प्रोसेस वर्क्स, राइट? क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज बता दो भाई, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया हो। सर इसके साथ अगर हम प्रैक्टिकल करते तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे ना, पहले थोड़ा सा जो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा मैं तुमको, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल फॉर एवरीथिंग, राइट? बट अभी क्या है कि पहले कुछ 2-4 सेशंस जो होंगे ना, जिसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा थियोरेटिकल और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे ना, तो जब हम करेंगे देन बैकग्राउंड में आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। यस सो कपल ऑफ नेक्स्ट वीक देखते हैं अगर कुछ इतना हम कवर कर पाए, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तो डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल्स, राइट? तब तक आप इसको देखो, और कोई भी क्वेश्चन आता है यू कैन जस्ट शेयर दैट क्वेश्चन। आप जरूरी नहीं है कि आप वेट करो पूरे वीकेंड का। अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट पिंग मी इन द ग्रुप इटसेल्फ, राइट? मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके बट ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आ जाए और आप पूरा वीक वेट कर रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी द केस, राइट? क्लियर है? यस अरविंद, दिवेश, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, लेट मी नो। नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है। हाँ, तो बस हमारा यही रहना चाहिए कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो अभी मैं बता रहा हूँ, these are going to be very helpful when you are actually working and going for the interview, right? यस सर यस सर। अब वही तो हमारा मेन पर्पस होता है। काम तो हम करेंगे तब जब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे, प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे, राइट? यस सर। क्लियर? ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं सर, अभी तो ऑल नहीं गुड? है। चलिए ठीक यस है, सर। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, राइट? यस सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। ओके बाय।